Welcome students. So until the previous video, in the previous video we have discussed about the various points about what are the different agricultural practices which are to be followed while growing a crop. So these were the last section which we have studied: preparation of soil, sowing, adding manure, irrigation, protecting from weed, harvesting and storage. These are the 7 points which we have to take care of while we are having the agriculture or doing the agriculture. So we are going to discuss the points one by one. The first point is preparation of soil. Preparation of soil. So what is preparation of soil? Preparation of soil क्या होता है? मिट्टी को तैयार कैसे करना है? तो तैयार करने का तो जो हम लोगों के सिंपल भाषा में हम जो जानते हैं कि तैयार करने का मतलब होता है कपड़े पहनना, ये वो इधर उधर जाने के लिए, यानी सीधे तौर पर कहा जाए तो किसी के सामने प्रेजेंटेबल, किसी के सामने हम उपस्थित होने लायक जब अपने आप को बनाते हैं तो वो होता है प्रिपरेशन। इसमें भी यही केस है। द सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर द crops or for agriculture, or you can say to be presented to the crops. So what are the points or what are the things that are required to prepare a soil? The first of all, we should know how soil works. Now you must have seen it's rainy season, all the plows are working, all the tractors are working around you, they are just plowing the field. So while the fields are flowing, this one is the first step. ये सबसे पहला step होता है for preparing the soil. तो वो उसमें हल क्यों चलाते हैं? Why they are plowing? तो इससे पहले अगर आप गर्मियों के मौसम में आपने खेतों को देखा होगा तो in summer what happens? All the moisture from the upper layer of the soil evaporates and this makes the soil hard. It becomes so hard that in some cases you might see like it will behave just like what you can say, a flow, a hardened flow. So first of all it should be loosened. इनको पहले धीरे ढीला करना पड़ता है क्योंकि इनका जो मिट्टी का ऊपरी लेयर है वो खराब हो जाता है, हार्ड हो जाता है. So this one is the first and the most important task that is to be done before a crop is sown. Now, what it does? What does plowing does? What is the function of plowing in a soil? It loosens the soil. It helps the soil to loose. The soil becomes airy. It becomes more. It has more oxygen in it, so the root can breathe inside it. Now, if we go to, if you have seen the soil, you must have seen the earthworms and some other small creatures present in it. Where does the earthworms live? The earthworms live inside the soil. They go up and down, making the soil more airy and making small holes inside it because they live inside there. These organisms are friends. These microbes and these earthworms are called the friends of the farmers because they will make the soil loosen up. वो मिट्टी को ढीला करते हैं, साथ ही साथ वो जब उनकी मृत्यु होती है तो वो क्या करते हैं? ह्यूमस तैयार करते हैं. ह्यूमस क्या होता है? The uppermost fertile layer of a soil is called as humus. तो सॉइल्स में होता क्या है? प्लांट्स जो है सॉइल में ऐसे ही तो उग नहीं सकते हैं. देयर मस्ट बी समथिंग इन इट, क्योंकि पक्के पे अगर आप डाल दे तो उसमें तो पौधा नहीं उग जाता. छत के ऊपर ढलाई है, उसके ऊपर अगर बीज डाल दे तो उसमें तो नहीं उग जाता. तो मिट्टी में ही क्यों उगता है? Because it contains, soil contains mineral, water, air and some living organisms. These are the contents of
soil. What does it does? What will it do to help? It helps the plants which are sowed in it to grow. For example, जैसे हमें बढ़ने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, तो न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलता है? By the food that we eat, हम जो खाना खाते हैं उससे हमें मिलता है. So in same case, the plants, where do they get nutrition from? They get it from the soil. Do they eat soil? No. क्या वो मिट्टी खाते हैं? नहीं. They use the soil as a medium. वो एक माध्यम के तौर पर मिट्टी का उपयोग करते हैं जिसके द्वारा वो अपने पोषण तत्वों को, न्यूट्रिशन को प्राप्त कर सके. This is the use of the soil. For example, इसको आप इस तरह से देखिए कि आप थाली में खाना लेते हैं तो क्या आप थाली को खा जाते हैं? नहीं. हम क्या करते हैं? थाली में भोजन लेते हैं और उस भोजन को उपयोग करते हैं. तो मिट्टी को हम वैसे ही थाली मानते हैं और उसमें जो उपलब्ध न्यूट्रिशंस है, the nutrients available in the soil can be called as the food items that are present in the. So next, how does it gets humus कैसे मिलता है? तो ह्यूमस क्या है कि जब उसमें बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं और उनमें से जो भी डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है तो उसमें से वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिल जाते हैं इन द प्लांट, सॉरी इन द सॉइल, एंड देन दे आर वंस अगेन absorbed by the plants. नेक्स्ट सेक्शन. तो ये सॉइल का फंक्शन हम पढ़ रहे हैं. तो सॉइल के फंक्शन में जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होता है द अपर लेयर ऑफ द सॉइल व्हिच इज द मोस्ट फर्टाइल. जो अपर लेयर है सॉइल का वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है एंड दैट ओनली इज नेसेसरी फॉर अ क्रॉप टू ग्रो एंड दैट अपर लेयर इज नेसेसरी दैट इट शुड हैव फर्टिलिटी और मस्ट हैव enough nutrients so that the crops can grow on it. So now the first few centimeter or first few inches of the soil are loosened up. हल जो है, जो ये ट्रैक्टर चलता है तो वो 1 मीटर नीचे नहीं जाता है या आधा मीटर नीचे नहीं जाता है. 4 से 5 इंच या 6 इंच तक ही वो नीचे धंसता है और वो उसी मिट्टी को ऊपर नीचे घुमा देता है. That is called as tilling. Got it? Tilling or plowing. So the process of loosening and turning the soil is called as tilling or plowing and that is done by plow. आपने देखा होगा इस तरह का ट्रैक्टर जो है खेतों में चलता रहता है या फिर इस तरह का आपने देखा होगा लोग हल चलाते हैं which is pulled by bullocks or oxes. This is called as plow. This is a traditional plow. ये एक ट्रेडिशनल प्लो है जो इस तरह से यहाँ जुड़ा हुआ होता है. यहाँ कंधों पर एक इस तरह का सपोर्ट होता है. ये इस तरह से उस सपोर्ट के साथ अटैच होता है और यहाँ पर जो मैकेनिज्म है जो मिट्टी को खोदने का काम करता है that is called as plowing and that this instrument is called as plow. ये पुराना तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है, पारंपरिक तरीका है. It takes time. Excuse me. It takes time. But the new age tractors, these are the tractors which take very less time and they can do it much faster. ये बहुत तेजी से खेतों को हल चलाते हैं, खेतों को जोत देते हैं, खेतों की मिट्टी को ढीला कर देते हैं और इस कारण से उपयोग इसका ज्यादा किया जाता है. तो this one is called as plow and this is the first step for in the agricultural practices. तो अगर हम वो काम नहीं करते हैं तो what happens? ठीक है. अब इसमें कुछ है, देखिए यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई है. Plows are made of wood or iron of the soil is very dry, it may need watering before plowing. अगर मिट्टी ज्यादा कड़ी हो गई है, ज्यादा हार्ड हो गई है तो थोड़ा पानी का जरूरत पड़ता है. जैसे अभी बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि गर्मी खत्म होता है और बरसात शुरू नहीं हुआ है उससे पहले कोई हल नहीं चलाता. ये गर्मियों के मौसम में कोई हल नहीं चलाता है. जब बारिश एक आध दो बार हो जाती है उसके बाद ही हल चलाने का काम शुरू किया जाता है क्योंकि मिट्टी बहुत हार्ड हो जाती है गर्मियों के दिनों में. उसके बाद होता क्या है
ठीक है ना। मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े हो जाते हैं जब हल चलाया जाता है, तो उन्हें तोड़ा जाना जरूरी होता है, ठीक है। तो तोड़ने के लिए क्या किया जाता है, प्लैंक का यूज किया जाता है। एक बड़ा सा भारी सा पटरा जैसा होता है, और वो क्या करता है, उसको ना, दिस इज हाउ प्लैंकिंग इज डन। इसमें आप देख रहे हैं ट्रैक्टर है, लेकिन ट्रैक्टर के पीछे मिट्टी खोदने वाला कोई भी डिवाइस नहीं है। यहां पर आप देख रहे हैं भारी सा एक वजन वाला कोई भी, ये यहाँ पर हो सकता है कंक्रीट का स्लैब हो। गांव में जब हल से उपयोग किया जाता है तो उस समय लकड़ी का पट्टा रहता है इसकी जगह, और उस पर 4-5 लोग बैठ जाते हैं वजन के लिए, और उसको खींचा जाता है ताकि जो मिट्टी है, जो बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाए, चुरा हो जाए। दिस इज कॉल्ड एज प्लैंकिंग और दीज आर कॉल्ड एज प्लैंक्स। तो इसमें ये जो हिस्सा है, दिस वन इज कॉल्ड एज अ प्लैंक। हिंदी में इसे पट्टा कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज द इरिगेशन पर्पसेस। उसके बाद जब प्लेन हो गया फील्ड, तो उसके बाद वो तैयार हो जाता है बीज बोने के लिए या सिंचाई के लिए। द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर, और उसके बाद फिर उसको लेवल कर दिया जाता है ताकि मिट्टी एक सीध में, खेत जो है वो एक सीध में दिखाई दे। अगर सीध में नहीं रहेगा तो क्या होगा, जब उसमें बीज बो दिया जाएगा तो फसल ऊपर नीचे हो जाएगी, या फिर जब पानी डाला जाएगा तो पानी कहीं जम जाएगा, कहीं पर नहीं पहुंचेगा। इस तरह से ये परेशानी वाली बात हो सकती है, इसलिए उसको लेवल करना भी जरूरी होता है। कभी कभी in some cases manure is added to the soil before tilling। कभी कभी क्या होता है, प्लोइंग से पहले, हल चलाने से पहले मैन्योर, आपने खेतों में देखा होगा, अगर आप खेत आपके आसपास है तो आपने देखा होगा कि जब हल चलाने से पहले मुख्य धान के खेतों में आप देखिएगा जगह जगह आपको दिखा होगा काला काला ढेर ट्रैक्टर लाके डाल देता है, तो वो क्या है, एक्चुअली में मैन्योर है। तो जब हल चलाया जाता है तो वो मैन्योर भी क्या होता है, साथ में मिलता चला जाता है। इससे क्या होता है कि उसमें अच्छी तरह से जो खाद है, मैन्योर जो है वो मिक्स हो जाता है, और इस तरह से द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सॉइल, और बीज बोने से पहले सॉइल में पानी डाला जाता है। ये हो गया आपका जो पहला स्टेप हम पढ़ रहे थे, वो था फ्लोइंग का। अब उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन, यानी उसका क्यों हमने ऐसा ऐसा किया। बिफोर सोइंग द सीड इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड। जरूरी है उसे तोड़ना ताकि हम अच्छी उपज को ले सके। अब उसके लिए किन किन चीजों का उपयोग किया जाता है, द टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। प्लो, हो और कल्टीवेटर का यूज किया जाता है। प्लो तो हमने देख लिया कि प्लो क्या होता है। प्लो होता है, दिस इज बीइंग यूज्ड इन, जब बहुत पुराना समय था उसी समय से इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। क्या क्या काम होता है, सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स, क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ ऑयल, इटीसी, ये बहुत सारे काम लोग करता है। इसको हम दिखा दिए थे हल कैसे बनता है, जो वहां हमने देखा था बैल खींच रहे थे। उसके अलावा कहीं कहीं घोड़े भी खींचते हैं, कहीं कहीं कैमल्स भी खींचते हैं, जहां जिस तरह का जानवर उपलब्ध हो उसका। उस प्लो में जो हल होता है उसका सबसे नीचे एक नुकीला कोना होता है जो मिट्टी में धंसता है और उसको उखाड़ता चला जाता है। तो ये इस तरह से ऑपरेट होता है। उसके बाद है हो क्या होता है, ये रिमूविंग वीड्स को हटाने के लिए ये आपका हो है, ठीक है। ये हो है, ये क्या करता है, वीड्स क्या होते हैं, वीड्स हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे हम बता देते हैं। वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स व्हिच ग्रोज इन अ फील्ड। मैदान में जो गैर जरूरी पौधे हैं वो जब उगाते हैं तो उन्हें हम वीड्स कहते हैं। तो उन्हें हटाने के लिए इस हो का यूज किया जाता है। और उसके बाद लास्ट में है कल्टीवेटर, जो तीन हम डिवाइसेस सुन रहे थे। कल्टीवेटर, तो कल्टीवेटर क्या करता है, समझिए उसे हम ट्रैक्टर कह सकते हैं। ये समय भी बचाता है, ताकत भी बचाता है और काम जल्दी भी होता है।
उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सोइंग। सोइंग का मतलब होता है बीज बोना। तो in the first step the soil has been prepared। मिट्टी को तैयार कर लिया गया है बीज बोने के लिए। अब अलग अलग तरह के बीज बोए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी में जो रोपण होता है, सभी में जो फसलें जब बोई जाती है तो कोई जरूरी नहीं है कि सभी के सभी बीजों के द्वारा ही बोए जाए। अभी हम जो करंट एग्जांपल चल रहा है वो पैडी धान की खेती हो रही है। तो धान के खेतों में आप देखेंगे कि लोग आपको बहुत सारे लोग आपको खेतों में ये काम करते हुए दिखाई देंगे। ये क्या हो रहा है? ये पौधे लगाए जा रहे हैं। तो यहां पर बीज नहीं था, यहां पर क्या था? यहां पर क्या है? पौधे हैं। ये बीज कहां से आए? तो ये पौधे कहां से आए? तो आपने कभी-कभी अगर आपके घर के आसपास खेत है तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि एक छोटा सा एरिया होता है जिसमें खूब सारे ये धान के पौधे उगा लिए जाते हैं। उसके बाद उन्हें वहां से उखाड़ लिया जाता है, जो प्रिपेयर हो जाते हैं उन्हें उखाड़ लिया जाता है। और उसके बाद जो वाटर लॉग फील्ड है, पानी से भरा हुआ खेत है, धान के पौधे इसी तरह के खेतों में लगाए जाते हैं जिसमें पानी भरा हुआ हो। ये देखिए एंकल तक, ये पानी टखने तक उसका डूबा हुआ है। तो वहां तक डूबा हुआ होता है और तब जाके उसमें ये धान के पौधे लगाए जाते हैं। पहले से जर्मिनेटेड पौधे लगाने का एक फायदा ये भी होता है कि यदि आप बीज लगा देते हैं तो बीज लगने के मतलब ये है कि आपने एक स्पॉट एक पौधे को दे दिया। अगर वो बीज खराब है तो वहां आपको पता तभी चलेगा जब सारे बीज जर्मिनेट हो जाएंगे। तो इसलिए अगर पहले ही हम पौधों को उगा लेते हैं तो हमें पता भी चल जाता है कि कोई फॉल्स बीज है, कोई खराब बीज है, तो उसमें से पौधे नहीं उगते हैं और वो जगह का बचत भी हमें करता है। तो ये हो गया आपका पैडी का सोइंग। पैडी को इस तरह से उगाया जाता है। एक दो फोटोग्राफ्स और है मेरे पास, आप देख सकते हैं। ये महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं हैं जो ये क्या कर रही हैं? ये एक जगह धान के पौधों को उगाया गया है। देखिए बहुत नजदीक में है। ये एक जगह पौधों को उगाया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पीछे छोटे छोटे बंडल्स बनाकर रखे गए हैं। कुछ पौधे 10 पौधे 20 पौधों को एक साथ बंडल बनाकर पीछे रख लिया गया है और ये काम वो आगे से उखाड़ कर पौधों के साथ कर रही है। अब इन्हें क्या किया जाएगा? इन बंडल्स को ले जाया जाएगा खेतों में, तैयार खेतों में, और वहां एक एक करके इन्हें डुबा कर गाड़ा जाता है। इस तरह से धान के पौधों को लगाया जाता है। तो ये सोइंग की प्रक्रिया है। अब इसमें ये तो हम आपको ऊपर से एक समरी बता दिए जो आपका बुक में दिया हुआ है, उस बुक के हिसाब से हमें चलना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड। लगाने से पहले, बीजों को बोने से पहले अच्छे गुणवत्ता वाले बीजों को खोजा जाता है, उन्हें साफ किया जाता है, अलग किया जाता है खराब वालों से, और उसके बाद ऐसे बीजों को सिलेक्शन किया जाता है जो उन्हें ज्यादा उपज दे सके। अगर बीज ही खराब होंगे तो पौधे ज्यादा बढ़िया नहीं उगेंगे। उसके बाद होता है कि बीजों को चुना कैसे जाता है। तो कभी-कभी क्या करता है कि ऐसे बीज जो पानी में डालने के ऊपर कुछ बीज ऊपर फ्लोट कर जाते हैं, कुछ डूब जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? तो डैमेज, जो सीड खराब हो गए हैं वो क्या होते हैं? हल्के हो जाते हैं, बीच में से खोखले हो जाते हैं और इसलिए वो हल्के होते हैं तो पानी के ऊपर तैर जाते हैं। जबकि जो हेल्दी, जो स्वस्थ सीड है वो क्या है? भारी होते हैं और वो पानी में डूब जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा बीजों का रोपण किया जाता है। एक प्रक्रिया तो हम आपको दिखा दिए कि जिसमें धान के बीजों को एक जगह लगाते हैं और उसको फिर एक एक जो पौधे उग जाते हैं उखाड़ कर एक एक पौधे को लगाया जाता है। तो यहाँ पर कुछ टूल्स दिए गए हैं, ट्रेडिशनल टूल्स है। तो जो ट्रेडिशनल टूल है उसमें क्या होता है? देखिए ये एक तरह का, ये एक फनल टाइप का है, ठीक है। ये फनल जो है मिट्टी में धंस सकता है। यहाँ मिट्टी में उसको इस तरह से
दबा दिया जाता है और एक बीज डाल दिया जाता है, फिर निकाल लिया जाता है। तो जब वो जाता है तो मिट्टी में जगह बनाता है और उसके बाद जब वो वापस आता है तो मिट्टी उसके ऊपर भर जाती है। इससे क्या होता है कि जो पक्षी हैं, जो बीजों की ताक में पड़े हुए रहते हैं, जो बीज खाते हैं, वो पक्षी भी ऐसे बीजों की ताक में रहते हैं और अगर उसे मिट्टी में दबाया ना जाए तो वो पक्षी उसे वहां से उठा लेंगे, खा जाएंगे। तो ये है एक ट्रेडिशनल वे ऑफ सोइंग। उसके बाद एक है सीड ड्रिल। ये सीड ड्रिल जो है ये क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर में वो सारा का सारा चीज डाल दिया जाता है, बीज वगैरह, और उसके बाद वो प्रॉपर एक निश्चित दूरी से उनको डालता जाता है। अब यहां पर एक बात आती है कि दूरी का अर्थ क्या होगा, दूरी का अर्थ क्या होता है, क्यों हम तो दो पौधों के बीच की दूरी जो है क्यों सुनिश्चित करनी जरूरी होती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।